Right. Up to this point, if any confusion, please ask, or shall I move on? Please tell me. Any query? You can unmute yourself. You can unmute yourself. If there is any query, shall I move on? Shall I continue? Shall I continue? Yes or no? Yes or no? Shall I continue? Okay, fine. Fine a minute. How many persons have joined? 28% have joined. So I think I may continue. So in the previous lecture, we have talked about the various data types. Data types that are used in clustering analysis, the various data types. In that, we are going to see nominal categorical data, interval scale variables, ordinal binary variables, and mixed type. Today, the lecture is very important. I request all of you to be attentive and respond to the query that I impose on you. Okay, fine. So I talked about nominal or you can say categorical attribute. Normally, we see what happens is we have binary attributes or numerical attributes. In binary attributes, obviously, we know that we have two probable values, 1 and 0, yes or no. In other words, we can say this. And in the second phase, if you are going to see this nominal variable or you can say categorical variable, it can take more than two states. Okay, so that is the basic thing, or you can say that the basic property that helps us to go through that. Okay, why we are interested in that. So now I'm going to find out how I can relate or how I can find that the two variables or two objects are similar to each other. I want to take methods here. The one is simple matching and the other one is by using binary variables. In simple matching, if you see here, what is going over there is, let me raise my voice. What you will observe here is, if m is the number of matches, yani total number of matches, total number of common things that has been found is m, and p is the total of the variables on which we are going to calculate the matches. So in that condition, we have dissimilarity between two objects I and j, and it is being calculated by p minus m upon p. So P is the total number of matches on which we are going to check it, and M is the actual match that occurred between the two variables. So P minus M upon P. Okay, so this is how we are going to calculate the dissimilarity between two objects I and J. Now the method 2 says that use a large number of binary variables. You can create a new variable for each of the M nominal states. Similarly, interval scales we have seen in the histogram. If you remember, it was interval scale like 0, like 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 on a scale, or you can say on an interval of 10. In that case, we are required to find this absolute deviation. Yes? Sir, Any confusion here? screen is not visible. Sir, only Screen is not. only the file name is. Okay. Thank you. I'm just going to share it once more. Don't worry. Okay, fine. Thank you. I'm going to share it once more. So here I go for screen, and in that this is now I think it is fine. Now is it visible? Visualize.
font. Now is it visible? Is the screen visible now, please? Is the screen visible? What is the status right now? Visible? Yes, sir. Yes, sir. Visible. Okay, fine, fine, fine. Thank you. So I was talking about the thing at this interval scale. So we have seen in histogram we have data in which we go for the range of variables like a range or depth of 10, 20, 15 according to our convenience. So here we find out the MF. MF is basically total X which we have calculated. It means the total of the data samples divided by their number. And when we go for the standardized measurement, we call Z score. I think you have studied the Z score normalization, if you remember. So it was X minus MF upon SF. So SF here is this, which we say that if you remember standard deviation kind of thing, that is mean absolute deviation. So for interval scale variables, we can see this way. For ordinals, similarly, we can say that it's a discrete or continuous kind of thing. Order is important here. Example, rank, and it can be treated like interval scale. What is important here is you have to replace XIF by their rank, and when you do it, you can easily map all the things in the range of 0 to 1, where Z equals to RIF minus 1 upon MF minus 1. So if we say that what is the dissimilarity, then we can calculate in this way. To understand all these concepts, I am going to give you some idea about how we are going to measure the dissimilarity with some formulas. So distance are normally used to measure the similarity. The minimum the distance, the more similar the objects are. Okay. Take a rule of thumb that if the dissimilarity is or if the distance is quite low, then similarity is high. So some popular methods includes Minkowski distance, where we calculate the distance between two objects I and j by taking the qth root upon mod of the x terms to the power q minus mod of the y terms. I think you remember the that one Euclidean distance. Xi minus x1 minus x2 whole square plus y2 minus y2 whole square plus to xn minus yn whole square, where this qth root is q equals to 2. What it says here that if q equals to 1, you are taking the first rule, then this particular thing is known as Manhattan distance. So if we are going to calculate between two objects p I j, the distance between two objects I and j, then we can calculate it in the terms like xi minus xj ka mod plus yi minus yj ka mod and so on. The first term, the second term up to the pth term. And when we say that it is q equals to 2, it comes to the Euclidean distance. You have all of the times heard about this Euclidean distance. Okay, see the properties of them. The distance between two objects I and j is greater than or equals to 0. This is the property of distance. Always distance may be 0 or it will be greater than 0. It cannot be negative when we are going to calculate the distance between two objects. It may be 0. Then what is the condition? You are calculating the distance between the same object. If I am saying that what is the distance of Kanpur from Kanpur, then it is 0. Tij, distance between I and j is equals to distance between j and I. It is the same thing that the distance between Kanpur and Delhi is equals to the distance between Delhi to Kanpur.
So Dij equals to Dji. Similarly, the other property says that if we are taking another node or another way to reach from I to j, which is k, you are saying over here, then the distance between I and j will always be less than or equals to distance between I and k plus distance between k and j. Any confusion at this point? I think no, it's a very simple concept. You are adding another variable, another point named as k, and you are calculating in this way. So see what it says. We can also use weighted distance, parametric Pearson moment correlation, or other dissimilarity measures. So this point says that there are numerous methods, numerous calculations by which we are able to find the distance between two objects. Fine. I'm going to show you that how to calculate the distance between two objects who are, you can say, binary in nature. So all of you understand what is the meaning of binary? It can take two values, either 1 or 0. Now I request all of you to understand this contingency table first. This contingency table is important with respect to calculate the distance between two objects I and j. I am showing here object I is having value 1, 0, object j is having value 1, 0. Either it is present or not present. Okay. So A, B, C, D. If you see vertically A, C, it means the sum goes to A plus C. When we see this B, D, it goes to B plus D. In the horizontal fashion, A plus B rise to A plus B, and C and D give rise to C plus D. So what is the meaning of this contingency table? I will make you clear with the help of this example, a real life example. Okay. Now here there is a mistake. The first point says that is similarity of asymmetric binary attributes. It is not symmetric, it is asymmetric. By mistake, it is written over symmetric. So dissimilarity of asymmetric attributes, if we are calculating between two objects I and j, the value comes out to be b plus c upon a plus b plus c plus d. Okay, pay attention here. Very important term. A plus b plus c plus d. The difference only arises here. You are not taking d when the attributes are symmetric in nature. So similarity of symmetric attributes Dij equals to b plus c upon a plus b plus c. Now very simple thing, you have already answered this thing. If we know the dissimilarity between two objects, then we can easily find the similarity between two objects. So 1 minus dissimilarity is equals to similarity. Okay. So when you are asked to calculate the similarity, subtract the dissimilarity from 1 and you will get the answer. See here what A is indicating here. If you see in the terms of table, A की यहाँ पे वैल्यू हो रही है 1 1. दिख रहा है? This A is getting value here 1 and 1. Fine? Yes, I am talking about A. So A is getting the value 1. Here I am highlighting it 1 and 1. अब इस तरीके से आप ये बताइए मुझे D की वैल्यू क्या है? Hurry up and tell me what is the value of D. Hurry up, hurry up. I'm saying that A is 1 1. What is the value? Yes, fine, very good. Write in the text box, please. If you understand this contingency table, you have understood each and everything. The value of D is, please, Achal Singh. Very good, fine. अब आप ये बात समझ गए, यही मेरा टास्क था, इतनी चीज आपको समझनी। तो देखिए ए की बात अगर हम करें, ए इंडिकेट कर रहा है उन एट्रीब्यूट्स को जहां की ऑब्जेक्ट आई और जे दोनों की वैल्यू 1 हो।
यानी ऑब्जेक्ट आई भी 1 हो, ऑब्जेक्ट जे भी 1 हो। बी क्या इंडिकेट कर रहा है? आई की वैल्यू यहाँ से देखिए, इस आई की वैल्यू हमारी 1 है और जे की वैल्यू 0 है। हम जब बात कर रहे हैं किसकी? बी की। सी की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट आई की वैल्यू 0 है, ऑब्जेक्ट जे की वैल्यू 1 है। तो इन द सिमिलर वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ देम। अब हम देखते हैं ये सब सारा जो ड्रामा है ये है क्या? एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। देखिए, आपके सामने एक, हम इसको रिलेट करते हैं कोरोना से। आपको बेसिकली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारे पास कुछ टेस्ट रिजल्ट्स आए 3 लोगों के, जैक, मैरी और जिम, और हमें ये देखना है कि इन तीनों लोगों में ये रिजल्ट्स को देखते हुए अगर हम हर स्टेप बाय स्टेप इन्हीं 2 लोगों को लेते हैं तो उनके बीच में डिसिमिलैरिटी या सिमिलैरिटी कैसे मिलेगी। तो हम पहला केस लेते हैं पहले एट्रीब्यूट का। एट्रीब्यूट आपको क्या-क्या दिख रहा है बेटा? देखिए, एक एट्रीब्यूट है जेंडर, अगला है फीवर, दूसरा है कफ, टेस्ट 1 मान लीजिए, ब्लड टेस्ट को, टेस्ट 2 मान लीजिए, यूरिन टेस्ट को, टेस्ट 3 मान लीजिए, स्टूल टेस्ट को, टेस्ट 4 मान लीजिए, जैसे बीपी टेस्ट को। तो इस तरीके से वेरियस टेस्ट किए गए। जैक का जेंडर मेल है, मैरी का फीमेल है, जिनका मेल है, और ये वाई का मतलब ये टेस्ट इसके में पॉजिटिव आया है, एन का मतलब है ये टेस्ट इसमें नेगेटिव आया है, पी का मतलब है ये टेस्ट प्रेजेंट है यानी 0 आया है, सॉरी 1 आया है, एन का मतलब है वो टेस्ट वहां पे फाइंड आउट नहीं हुआ, उसकी वैल्यू 0 है। मेरा क्वेश्चन ये है, जेंडर इज सिमेट्रिक, बताइए क्यों? हम कह रहे हैं इन सभी एट्रीब्यूट्स में जेंडर सिमेट्रिक है। जेंडर सिमेट्रिक होने का मतलब ये है, सिमेट्रिक की कंडीशन ये होती है कि उसकी दोनों प्रोबेबल वैल्यूज पे किसी टेस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, डिफरेंट इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब ये बुखार होना, फीवर होना इस बात पे नहीं डिपेंड करता है कि पर्सन मेल है या फीमेल है। हमारे पॉइंट क्लियर है आप सभी लोग को? ये फीवर का जो केस दिया हुआ है ये इस बात पे कहीं से भी निर्भर नहीं करता है कि पर्सन का जेंडर मेल है या फीमेल है। तो इनमें जो भी टेस्ट लिए गए हैं वो मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन है। Okay, that's why we can say that this gender is symmetric attribute। तो अब हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा डिसिमिलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए? ये फॉर्मूला लगेगा। बात समझ में आ रही है? b plus c upon a plus b plus c if we are finding the dissimilarity between two objects i and j। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स आर असिमेट्रिक बाइनरी, इनका इफेक्ट पड़ेगा। Let the values of y and p be set to 1 and the value of n be set to 0। अब आपको ये बताना है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये समझाने के लिए मैं आपको दूसरी लैंग्वेज का भी यूज कर रहा हूँ। यहाँ मेरा टारगेट है, मुझे फाइंड करना है कि डिसिमिलैरिटी जैक और मैरी के बीच में क्या है। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ जे? पहले तो आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज आई एंड व्हाट इज जे हियर? आई क्या है और जे क्या है? प्लीज टेल। सर सिमेट्रिक वैल्यू। आई और जे हमेशा ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। सॉरी, यस। अब हमें वैल्यू क्या ढूंढनी होगी बेटा? यहाँ पे देखिए डिसिमिलैरिटी के लिए हमें वैल्यू चाहिए बी की, वैल्यू चाहिए सी की, और उसे हम डिवाइड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी से। यानी ए की वैल्यू चाहिए, बी की चाहिए और सी की चाहिए। ए की वैल्यू होती है 1 1, ये आपने देख लिया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि ये डेटा हमारा बाइनरी वेरिएबल के नेचर का है, हम इसमें क्या करेंगे, जो y है उसको 1 कर दिया, जो n है उसको 0 कर दिया, जो p है उसको 1 कर दिया। सिंपल, कोई कंफ्यूजन? y का मतलब 1 इंडिकेट कर रहा है, n का मतलब 0 इंडिकेट कर रहा है, p का मतलब हमारा 1 इंडिकेट कर रहा है, p मतलब प्रेजेंट। तो अब अगर हम जैक और मैरी को देखें तो हमारा जैक ये पॉइंट हो गया आपका पूरा, देखते जाइएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। ये जैक हो गए पूरे, और ये यहाँ से हो गए सेकंड वाले में हमारा ये मैरी का डेटा हो गया। समझ में आ रही बात?
तो फीवर की कंडीशन देखें तो 1-1 हो गया, वाई वाई का मतलब क्या हो गया बेटा 1-1, NN 0-0, PP 1-1, NN 0-0, NP मतलब 0-1 और NN मतलब 0-0। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो ये वेरिएबल b है, हमें b प्लस सी निकालना है, तो b क्या बताता है कि 1 होना चाहिए और 0 होना चाहिए। तो 1 0। अब आप इस टेबल पे ये बताइए कि 1 0 की ऑकरेंस कितनी बार आई है? यानी जहाँ पे जैक 0 हो और मैरी 1 हो। इससे देखिए, जहाँ पे जैक क्या हो 0 हो, सॉरी लेट मी शो यू द टेबल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 आई, यानी कि जैक जो है वो 1 हो और ऑब्जेक्ट जे मैरी 0। 1 0 कहाँ आ रहा है, कितनी बार आ रहा है? यहाँ आ रहा है 1 1, ये नहीं काउंट में आएगा, 0 0 नहीं आएगा, 1 1 नहीं आएगा, 0 0 नहीं आएगा। यहाँ पे 0 1 है, ये भी नहीं आएगा और ये 0 0 भी नहीं आएगा। कितनी कितनी बार आया बेटा? क्या काउंट आया है 1 0 का? 0। वेरी गुड। तो 1 0 यानी यहाँ बी की वैल्यू मेरी हो गई 0। बी के बाद है प्लस सी, और सी क्या हमारा बता रहा है? सी कहता है 0 1 0 1। अब ये बताइए इसमें 0 1 कितनी बार आया है? 1 टाइम। वेरी गुड। तो 0 प्लस 1, आपके नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो क्या बता रहा है? a प्लस बी प्लस सी। तो b प्लस सी तो ऊपर आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आपने यहाँ पे सीधे रख दिया 0 प्लस 1। a की वैल्यू क्या है? और a इंडिकेट करता है किस चीज को? 1 1 को। अब बताइए 1 1 कितनी बार आया है? 2 टाइम। 2 टाइम्स। अब आपने सब कुछ कर लिया, इसके आगे मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, काफी खुश है कि आपने एक बार में चीजों को समझ लिया। अब देखिए इसमें क्या किया आपने, इसकी वैल्यू कैलकुलेट की 0.33। अब जब आपको जैक और जिम देखना होगा तो मैरी वाले पार्ट को हटा देंगे यहाँ से बीच से, और जैक और जिम को लेंगे तो 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0। आप ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जिम मैरी को देखना होगा तो लास्ट की दोनों एंट्री को देखेंगे। ये वैल्यूज आपके सामने कैलकुलेटेड है। अब मेरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पास ये क्वेश्चन मैंने इम्पोज किया, मैं बिना समझाए बता रहा हूँ, देखो मैं कितने लोग इसको आंसर कर पाते हैं। इनमें से कौन से दो लोग सिमिलर हैं? क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। Who among these three persons are very similar? मतलब एक को कोई बीमारी है तो दूसरे को भी होती है, दोनों का नेचर सेम है इन सभी टेस्ट के करेस्पॉन्डिंग। आंसर करिए, कौन आपस में सिमिलर है? जैक एंड मैरी। मेरे क्वेश्चन को फिर से एक बार सुनिएगा। कौन से दो लोग हैं जिनके बीच में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी है? अभी आंसर किसने किया था? प्लीज योर नेम। जब हम पीडीएफ देखते हैं तो चैट डिसेबल हो जाता है, इसलिए आप नाम बताएं। आंचल सिंह। आंचल, आंचल आपका एफर्ट बहुत अच्छा है। तो अब मेरे क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। आपने बताया कि सर जैक और मैरी के बीच में जो है सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी है। थोड़ा सा इसको चेंज करिए, जैक और जैक एंड जिम। नहीं, ये तो फिर तो कहीं से नहीं सेट हो रहा है। आप देखिए, अगर आप डिसिमिलैरिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा डिसिमिलैरिटी किसके बीच में दिख रही है? 0.33 आ रही है। ओके, और ये किसके बीच में है? जैक और मैरी के बीच में। तो अब अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा,
हम कह रहे हैं सिमिलैरिटी किसके बीच में है, तो सिमिलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस सिमिलैरिटी, है ना? यस सर। जिम एंड मैरी, वेरी गुड, फाइन। तो अब आप समझ गए सभी लोग इस चीज को। ये डिसिमिलैरिटी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब कि उसको रिवर्स करिए तो सिमिलैरिटी उनमें सबसे कम आएगी। ओके, तो अब आपके ऊपर क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि किसके बीच में सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा है, किसके बीच में डिसिमिलैरिटी सबसे ज्यादा है, तो इन दिस वे यू कैन आंसर इट। तो अब आपने देखा कि डेटा माइनिंग में आप किसी दो वेरिएबल्स, किन्हीं दो लोगों के बीच में, किन्हीं दो स्टेट्स के बीच में, किन्हीं दो शेयर्स के बीच में, किन्हीं दो पर्सन्स के बीच में अगर आपके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो उनकी हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं कि उनका आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशन है, कितने वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो बताइए यहाँ पे। तो एनी क्वेरी, बात समझ में आ गई? एनी क्वेरी? आई एम हियर stopping myself so that if further you need any clarification and there any query, all the thing is clear why we are doing so? Yes, sir. और हमें इससे क्या मिल रहा है, इसका एसेंस भी हमें क्लियर हो गया। तो shall I move on? Please tell, shall I move on? Or if any query, you can raise it. Sir, go ahead. Okay, thank you. So I am glad to know that you have understood this thing, because it's very difficult task to explain numerical in this PDF format. Okay, it all depends on the listeners how they are attentive. Fine. So we have variables of mixed type, go through the formula, and then it closes or it end up this topic. Now I am going to deal with another topic, and listen very carefully. In clustering, this is the topic that is always asked. Okay, so let me share that thing. Now I am going to show you the very important thing that is known as this classroom. I'm going to show you all the things in detail of the topic cluster. So first answer, is everything visible to you? Categorization of major clustering methods. Fine. Screen is visible. यस सर। Okay, fine. So then I am moving on. देखिए, इसमें सबसे पहले जो आपको मैं ये कहूंगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी कैटेगरीज हैं क्लस्टरिंग की, और उन कैटेगरीज में कौन कौन सी एल्गोरिथम्स आती हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप कोई भी एक डेंसिटी बेस्ड एल्गोरिथम का नाम बताइए और उसको एक्सप्लेन करिए। तो पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये डेंसिटी बेस्ड मेथड में कौन से मेथड आते हैं। तो ये पहली स्लाइड जो हमने आपको डिनोट करी हुई है, ये इसलिए है ताकि आपको ये पता चल सके कि किस तरीके से हम कैटेगराइजेशन करते हैं और उनमें कौन कौन सी एल्गोरिथम्स आती हैं। फाइन है। तो पहली जो वो होता है मेथड, वो होता है पार्टीशनिंग मेथड। देखिए, इनका नाम जैसा है वैसा इनका काम भी है। ये डेटा को पार्टीशन करते हैं, मतलब उनके टुकड़े कर देते हैं। इन जब ये टुकड़े करते हैं तो इसमें हमारे पास दो मेथड है, एक है के मीन्स और एक है के मिडॉइड। तो के मीन्स का न्यूमेरिकल आप अपने पेपर को उठा के देखिएगा, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, और ये मैं आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझा दूंगा, इसको आपको ध्यान देना होगा। तो पार्टीशनिंग मेथड में जो हमारी एल्गोरिथम्स आती हैं वो है के मीन्स क्लस्टरिंग और के मिडॉइड क्लस्टरिंग। जब आप हायरार्किकल मेथड कहते हैं, मतलब एक हायरार्की फॉलो हो रही है, तो इसमें दो तरीके की चीजें होती हैं, या तो ये एग्लोमेरेटिव है या डिविजिव है। तो एग्लोमेरेटिव मतलब चीजें एग्रीगेशन की ओर जा रही है। मतलब आपने क्या किया, दो को लिया, फिर एक एक अलग अलग है, तब पहले एक एक को कंबाइन करके दो का सेट बनाया,
फिर दो को कंबाइन करके 3 का सेट बनाया, ये कहलाएगा आपका एग्लोमेरेटिव। डिविजिव क्या है? एक बार आपने सारा का सारा डेटा सेट ले लिया और डिवाइड करते चले गए, तो वो कहलाता है डिविजिव। इसमें जो हम देखेंगे एल्गोरिथम वो हो गया क्योर, क्लस्टरिंग यूजिंग रिप्रेजेंटेटिव, का फुल फॉर्म है क्योटा, और अगले देखेंगे चैनलियन। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि डेंसिटी, घनत्व। ओके, डेंसिटी बेस्ड मेथड कौन से हैं? इनमें आपका आएगा डीबी स्कैन, जिसका नाम है डेंसिटी बेस्ड स्पेशियल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विद नॉइज। इसकी खास बात यही है कि ये नॉइज को हैंडल कर लेता है, ऊपर वाले नॉइज को हैंडल नहीं कर पाते। अब मुझे यहाँ नॉइज के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, यू ऑल नो इट। ऑप्टिक्स एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम आएगी। ऑप्टिक्स का मतलब है ऑर्डरिंग पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई द क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद हम देखेंगे ग्रिड बेस्ड मेथड, इसमें आएंगे आपके स्टिंग। स्टिंग है आपका स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ग्रिड, और अगला है क्ली, क्लस्टरिंग इन क्वेस्ट। ये आपके दो टास्क बनेंगे। ओके, और आज लास्ट में आप देखेंगे मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड। तो अब हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। एक क्लस्टरिंग मेथड को हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमें तब तक आगे नहीं बढ़ने दीजिएगा जब तक आपको एक पॉइंट समझ ना आ जाए, क्योंकि के मींस क्लस्टरिंग आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्लस्टरिंग है। इसका न्यूमेरिकल मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है। आपके असाइनमेंट में भी के मींस क्लस्टरिंग ही दिया गया है। ओके, तो करते हैं partitioning method. What it does is it construct a partition of a database D. आपका टोटल जो डेटाबेस है उसको हम कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं। इसको ये पार्टीशन करेगा, मतलब टुकड़ों में करेगा। ये डेटाबेस डी क्या रखे हुए अपने अंदर? n ऑब्जेक्ट्स को। वो 20 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 2 लाख हो सकते हैं। और ये करेगा क्या? इट विल फाइंड ऑल ऑफ देम इनटू के क्लस्टर्स। अभी आप देखिए आपके कोरोना के चलते जो है हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि क्लस्टरिंग का रियल सिग्निफिकेंस क्या है। हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्लस्टर्स बना दिए हैं, और उन क्लस्टर्स को नाम दे दिया है। एक क्लस्टर जो है आपस में बिल्कुल सिमिलर है, तो उसको हम कह दे रहे हैं, चलिए वो रेड जोन है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज है। एक ग्रीन जोन हो गया और एक ऑरेंज जोन हो गया। ओके, तो के क्लस्टर्स, इन तीनों में हमारी के की वैल्यू क्या है बेटा? 3 है। ओके, अब आप कहोगे कि सर ये तो क्लासिफिकेशन है, आप पहले से ही रेड ब्लू और रेड ग्रीन और ऑरेंज कह के चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमने सबको एक साथ एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद से जो आपस में सिमिलर हुए उनको एक साथ रखा। तो हमें पहले से ही के की वैल्यू डिफाइन कर रखी थी कि हमको 3 क्लस्टर चाहिए। फिर हमने उनको कहा कि चलो हम इनको रेड कह दे रहे हैं, इनको ब्लू कह दे रहे हैं। किसी का मन आएगा तो उनको ग्रे कह सकता है, समझिएगा। फिर क्लासिफिकेशन करेंगे तो जो नाम पहले दिया गया है वही रहेगा। ओके, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो गिवन अ के इज द नंबर ऑफ क्लस्टर्स यू आर इंटेंडेड टू पार्टीशन द डेटा। सो गिवन अ के, आपको एक के दिया जाता है इसमें, और आपको पूछा क्या जाता है, you have to find a partition of K clusters that optimize the chosen partitioning criteria. इस chosen partitioning criteria को K जो है उतने में ही डिवाइड करके रखेगा। इसके लिए हमारे पास ह्यूरिस्टिक मेथड है। ह्यूरिस्टिक मेथड आप AI में पढ़ेंगे, फिलहाल आपको इतना बता देते हैं। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है प्रायर नॉलेज। इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर हम आपको समझाएं तो हम कहें कि आपके लैपटॉप में साउंड नहीं आ रही है, तो आप किस कंपोनेंट को चेक करेंगे? तो आपका पहला टारगेट ये होगा कि सर हम स्पीकर को चेक करेंगे। यही चीज कहलाती है ह्यूरिस्टिक, यानी आपके पास पहले कुछ इंफॉर्मेशन होती है। इसमें दो मेथड्स एप्लीकेबल हैं। पहला मेथड है के मींस। हियर ईच क्लस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेंटर ऑफ द क्लस्टर। हम क्या करेंगे? एक मॉनिटर सेलेक्ट कर लेंगे, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर लेंगे, क्लास का सीआर कर लेंगे जो कह लीजिए, और हर एक ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसी के अराउंड डेटा सैंपल अपने आप क्लस्टर करें। ये कहलाता है आपका के मिडॉइड कहलाता है पार्टीशन अराउंड मिडॉइड्स। इन्होंने ये कहा कि बिसाइड एक वर्चुअल चीज को लेने के, अभी आपको वर्चुअल चीज समझ में आ जाएगी, आप रियल चीज लेके चलिए, तो वही रिफाइनमेंट के मींस का कहलाता है के मिडॉइड। थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं क्या चीज है। तो के मींस क्लस्टरिंग जब आपकी वर्क करेगी, ध्यान दीजिएगा बेटा,
आपको सबसे पहले ये बता दिया जाएगा कि आपको टोटल डेटा सेट को कितने ग्रुप्स में बांटना है। तो यहाँ पे आपका के गिवन होगा। तो के मीन्स एल्गोरिथम बहुत ही इजी है। ये क्या करती है, पार्टीशन करती है ऑब्जेक्ट्स को के नॉन एम्प्टी सबसेट्स में। तो जितने ग्रुप आपको दिए गए हैं पूरा डेटा ऑब्जेक्ट उतने ही ग्रुप में पार्टीशन हो जाएगा और कोई भी सेट एम्प्टी नहीं होगा। फिर आप क्या करते हो इसमें, कंप्यूट सीड पॉइंट्स एट द सेंट्रॉइड ऑफ द क्लस्टर ऑफ द करंट पार्टीशन। आपके पास जितने भी डेटा एक ग्रुप में आते हैं उनमें से आप एक सेंट्रॉइड सेलेक्ट करते हो और ये सेंट्रॉइड बेसिकली होता क्या है, मीन होता है आपका। मीन मतलब था एवरेज क्लस्टर का। फिर उस क्लस्टर सभी क्लस्टर्स के एवरेज आपको मिल जाते हैं और फिर सभी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि हम डिस्टेंस क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। हमको ये देखना होता है कि वो कितने आपस में सिमिलर हैं। तो we assign each object to the cluster with the nearest seed point। और ये काम आप तब तक करते रहेंगे जब तक कोई नया असाइनमेंट ना हो, या अगर सिंपलर वर्ड्स में कहें तो जब आपका मीन चेंज होना बंद ना कर दे। सभी को अगर हम समराइज करें, एल्गोरिथम हम अगले डिस्कशन में देखेंगे। इन सबको अगर हम समराइज करें तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस चार्ट में देखिए आपके पास ये डेटा सैंपल दिए, वन स्क्रीन चली गई। ओहो, बीच बीच में क्या हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। लेट मी शेयर दिस वंस मोर। ये सब फ्री वर्जन्स की प्रॉब्लम है। अब बताइए बेटा, स्क्रीन विजिबल है? अभी कंडीशन क्या है? फाइन बेटा, 1 मिनट आपका टाइम लूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पे अपना डिस्कशन रोक दूंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। आप ये देखिए कि इसमें आपको कहा गया है कि कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और इसमें हमारा टारगेट ये है कि हम इन पॉइंट्स को दो ग्रुप्स में हमको असेंबल करना है। प्रॉपर्टी वही होनी चाहिए, एक ग्रुप के जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपस में क्लोज होने चाहिए, वो सिमिलर होने चाहिए, और दूसरे ग्रुप वाले आपस में सिमिलर होने चाहिए, और एक ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स दूसरे से सिमिलर नहीं होने चाहिए, सिमिलर। ये आपको दिया गया है। ओके, आपको कहा गया कि आपको दो क्लस्टर में डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया कि इस जो रेड पॉइंट आपको दिख रहे हैं दो, एक रेड दिख रहा है, एक ब्राउन दिख रहा है। हमने कहा कि ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें दो क्लस्टर करने हैं, तो हमने दो लोगों को सिलेक्ट कर लिया। एक क्लस्टर इस ब्राउन वाले से रिप्रेजेंट किया जाएगा और एक जो है रेड से किया जाएगा। तो हम करेंगे क्या, हम सभी डेटा पॉइंट्स की डिस्टेंस इनसे कैलकुलेट करेंगे और जो जिसके क्लोज होगा वो उसके साथ ग्रुप में चला जाएगा। देखिए इसने क्या किया, फॉर k इक्वल टू 2 लेट्स चूज k ऑब्जेक्ट्स एज इनिशियल क्लस्टर सेंटर। हमेशा याद रखिएगा आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होगा इसमें, आपका रिजल्ट वही आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो असाइन ईच पॉइंट्स टू सिमिलर क्लस्टर। अब हमने जो है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से सबकी डिस्टेंस कैलकुलेट करी, जो इस, और जैसे मान लीजिए मैंने इसको पकड़ा सबसे नीचे वाले को, देखा कि ये ब्राउन वाले से पास आ रहा है या ग्रे वाले से। अगर भी हमने इसको ऑब्जेक्ट किया कि ओके ये तो ब्राउन वाले के पास है, तो ये ब्राउन वाले के साथ हो जाएगा। यही चीज आपको यहाँ दिख रही है, ब्राउन वाले के साथ हो गए आपके पास 2 2 4 1 5 5 पॉइंट्स हो गए, और यहाँ पे आपको रेड वाले के साथ देखें तो 4 पॉइंट्स हो गए। अब ये करेक्ट है कि नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, इनका सेंट्रॉइड चेक करेंगे, इनका मीन निकालेंगे। तो इनका मीन निकाले तो अब जो सेंटर है वो यहाँ पे आ गया ब्राउन वाला, और रेड वाला यहाँ पे आ गया। फिर से यही काम करेंगे, हम सबको चेक करेंगे ओके कौन किसके क्लोज है, यानी यही काम दोबारा से होगा। तो रीअसाइन द पॉइंट्स बेस्ड ऑन मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जिससे होगी वो उसके साथ हो जाएगा। फिर हम नया सेंट्रॉइड लेंगे और इस तरीके से आप ये देखेंगे कि आपके पास दो क्लस्टर्स बन के निकल आए हैं, जिसमें ब्लू वाले 4 पॉइंट एक साथ हैं और रेड वाला है, और 5 पॉइंट्स आपके कौन से दिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कौन से दिख रहे हैं, जो एक साथ हैं और उनका सेंट्रॉइड कौन सा है, द ब्राउन वन।
ये आपका फाइनल आंसर हो गया। जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये कैसे होता है, किसी की कोई क्वेरी हो तो आप पूछिए, और क्योंकि टाइम ओवर हो गया है, कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क इट, अदरवाइज आई रिक्वेस्ट यू टू गिव योर अटेंडेंस विद रोल नंबर एंड आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरीज। ओके, if any query, any kind of query which you have studied up to now, you can ask it and give your attendance by writing your name with the roll number. And I am waiting for your query. और ये सभी चीजें एक साथ बेटा इसमें विजिबल नहीं हो पाती हैं, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी जब भी आपको स्क्रीन विजिबल ना हो आप हमें उसी वक्त स्टॉप कर दिया करिए, क्योंकि फिर हम चैट बॉक्स नहीं देखते हैं। बार बार स्विच करेंगे तो इसमें स्क्रीन डेविएट करती है, प्रॉब्लम आती है। अभी तक में किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? Any kind of problem, anything? Any query related to any topic? Please ask, don't hesitate. अगर आपने यहाँ से क्लस्टरिंग का इंट्रोडक्शन सही से समझ लिया, डिस्टेंस समझ लिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ध्यान रखिए, तो जरूरी ये है कि आप इन सभी चीजों को बड़े ध्यान से समझें। कहीं कोई क्वेरी रह जाए तो आप उसको जरूर पूछिए। तो किसी की कोई क्वेरी नहीं है? सेक्शन ए की परफॉर्मेंस हमें सबसे अच्छी लगती है, तो हम ये हमेशा उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चन जो आपके दिमाग में रह गया हो, चाहे वो सिली ही क्यों ना हो, उसे आप जरूर पूछें। तो अभी नेक्स्ट जब डिस्कशन होगा तो मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा के मींस क्लस्टरिंग का, और उसको डिफरेंशिएट करा दूंगा के मिरॉइड से। जब ये दोनों आप समझ जाएंगे तो आपको पूरी क्लस्टरिंग समझ में आ जाएगी, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक क्वेरी आई है, इन द फार्मूला ऑफ Dij व्हाई वी हैव टू नो D फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ओके, आंचल, ये डी को हमने इसलिए रिमूव किया है क्योंकि जो हमारा एट्रीब्यूट्स का नेचर है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एट्रीब्यूट्स का नेचर है वो है सिमेट्रिकल। अगर ये असिमेट्रिकल होता तो हम डी को लेते। बात समझ में आ रही है? इन दो एट्रीब्यूट्स के बीच में हम सिमिलैरिटी चेक कर रहे हैं, जेंडर है, जेंडर हमारा वहां पे सिमेट्रिक है। किसी को बुखार होगा या नहीं होगा ये इस पे नहीं डिपेंड करता है कि वो मेल है या फीमेल है, या फीमेल है तो उसको बुखार हो सकता है, मेल है तो उसको नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए जो आपने b प्लस सी अपॉन बी ए प्लस बी प्लस सॉरी बी प्लस सी प्लस डी रखा था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो डी वहां पे नहीं रखा जाता है। पीडीएफ में एक एरर थी जो मैंने आपको बताई दिया था, अगर असिमेट्रिक है तो डी रहेगा, सिमेट्रिक है तो डी नहीं रहेगा इन केस ऑफ बाइनरी वेरिएबल। ठीक है आचल, आर यू क्लियर अबाउट दैट? ओके फाइन। So those who have not any query, thank you. Being a very good listener, I am impressed with section A, obviously. So you can leave the session. Those who have given their attendance, further if any query you can ask. I am waiting for the others to mark their attendance for the next 30 seconds. Fine. Thank you to all.
Thank you all.